قریب پہ گئے، کہا میرا کوئی امتی بھی اگر کوشش کرے گا حتیم میں بھی داخل ہوگا، رب اسے بیت اللہ والا ثواب عطا فرما دے گا۔ حضور علیہ السلام کو جانے سے پہلے آپ کا شق صدر ہوا، سینہ مبارک کو کھولا گیا، یہ کل 4 مرتبہ ہوا، پہلے 2.5 سال کی عمر میں، پھر 10 سال کی عمر میں، پھر نبوت کے وقت، پھر معراج کے وقت۔ اس میں بھی بڑی بڑی حکمتیں ہیں، میں ایک ایک پہ روشنی ڈالتا جاؤں تو وقت لگے گا، لیکن اشارہ دیتا ہوں کیونکہ سب سے پہلے جب 55 میں آپ کا سینہ مبارک کھولا گیا، آپ کا دل مبارک پہر نکالا گیا، اسے زمزم سے دھویا گیا۔ میں کہا کرتا ہوں لوگوں، کچھ لوگ ایسے بھی آئے جو کہتے ہیں آقا علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں کیسا زندہ رہ سکتے ہیں؟ میں نے کہا اگر یہاں بڑے سے بڑا ڈاکٹر کیوں نہ آ جائے، وہ جب سرجری کرتا ہے اگر کوئی ایسا ڈاکٹر دکھاؤ جو دل کو باہر نکال کر تھالی میں رکھ دے اور انسان زندہ رہ جائے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب میرا شق صدر کیا گیا، میرے سینے سے دل مبارک کو نکالا گیا، فرشتے جو باتیں کر رہے تھے میں محمد سن رہا تھا، میں نے کہا یہ ہے میرے پیغمبر کی شان۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں میرا وہاں پہ شق صدر ہوا، پہلا اس لیے ہوا کہ بچپن کے اندر اگر کوئی سے کھیل کود کی تمنا ہو جائے وہ نکال دو، رب کی تجلیات بھرنی ہے۔ پھر 10 سال میں ایسا ہوا، پھر نبوت کے وقت میں ایسا ہوا، اگر میرے پیغمبر پہ قرآن نہ اترتا بلکہ ڈائریکٹ ہمارے پاس آتا، آج ہم میں اتنی ہمت نہ ہوتی ہم قرآن کی تلاوت کر سکتے۔ آپ نے سنا نہیں جناب موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے، امت نے اصرار کیا ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ نے ایک تجلی کی، سارے جل کر راکھ ہو گئے تھے۔ یہ اللہ کی تجلی ہم برداشت نہیں کر سکتے تھے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ میرے محمد کو رب کی تجلیات، میرے محمد کے دل کو اللہ نے اپنی تجلیات سے بھرا، پھر اللہ نے قرآن نازل کیا میرے محمد کے دل پر، میرے محمد کے دل سے ہوتا ہوا آج سب امتیوں کے دل میں آ چکا ہے۔ یہ بھی میرے محمد کی رحمت میں سے ایک رحمت ہے۔ تو اس وقت آپ کا دل مبارک دھویا گیا تاکہ اللہ کی تجلیات کو برداشت کر سکے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے پوچھا جبریل جانا کس کے ساتھ، کس چیز پر ہے؟ آقا ہم جو ہے جنت سے سواری لے کر آئے۔ میں نے کہا وہ کون سی سواری؟ کہا وہ براق ہے۔ براق کیا ہے؟ ایک جانور ہے، جیسے ہمارے ہاں گدھا ہے، اس کی مشابہت کا جانور تھا، لیکن اس کے اتنی بڑی تیزی اس کے اندر تھی، جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا، اتنی تیزی سے چلی۔ یہ کہاں لے کر گئی؟ یہ مسجد اقصیٰ میں لے کر گئی۔ اب مسجد اقصیٰ کے اندر اللہ نے تمام انبیاء کو اکٹھا کیا، اللہ کے پاک پیغمبر نے وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھائی ہے۔ اور یہاں ایک مسئلہ بھی حل کرتا چلا جاؤں، اللہ کے قرآن میں آیا، اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ قرآن کریم اور 7 آیتوں والی سورت یعنی سورت فاتحہ پیغمبر محمد کو عطا کی تھی، اس سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی۔ معلوم یہ ہوا جب میرے پیغمبر نے وہاں جا کر نماز پڑھائی ہے، باقی انبیاء کو فاتحہ یاد نہیں تھی۔ کیوں یاد ہوتی؟ ان کو تو نازل بھی نہیں ہوئی، جب نازل نہیں ہوئی تو وہ کیسے یاد کرتے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے نماز پڑھائی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر فاتحہ پڑھ رہے ہیں، پیچھے مقتدی فاتحہ نہیں پڑھ رہے، تو وہاں انبیاء کی اگر نماز ہو گئی، یہاں ہماری بھی امام کے پیچھے نماز ہو جائے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کہتے ہیں جی یہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے نماز نہیں ہوگی، یہ تو علیحدہ بحث ہے، اس پر بڑی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں میرا پیغمبر وہاں نماز پڑھا رہا تھا، کسی نبی پر اللہ نے فاتحہ کو نازل ہی نہیں کیا۔ جب نازل نہیں کیا تو نماز میں کہاں پڑھیں گے؟ جب پڑھ نہیں رہے تو نماز ان کی کیسے ہو گئی؟ اگر ان کی نماز صحیح ہے تو ہماری بھی صحیح ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا امام جب قرات کرتا ہے تو وہ مقتدی کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ تو اپنے مسلک میں ہمیں کامل یقین ہے کہ یہ ٹھیک ہے۔ باقی جو انفرادی نماز پڑھتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں اگر انفرادی نماز پڑھنے والا
फातिहा नहीं पढ़ेगा उसकी नमाज नहीं होगी। इनफरादी अकेला नमाज पढ़ने वाला फातिहा पढ़ेगा, क्योंकि फातिहा पढ़ना वाजिब है, वाजिब को छोड़ेगा तो नमाज नहीं होगी। लेकिन जब इमाम के पीछे आएगा, इमाम फातिहा पढ़ेगा, वो इमाम की फातिहा मुक्तदी की हो जाएगी। पर में आगे चलो, अल्लाह के पाक पैगंबर ने वहां नमाज पढ़ाई है। नमाज पढ़ाने के बाद अल्लाह के पाक पैगंबर को फिर मस्जिद अक्सा से ऊपर आसमानों की जानिब ले जाया गया। वो सफर सीने का सफर था, मैं कहूँ आज की जबान में वो सफर लिफ्ट का सफर था। जैसे लिफ्ट ऊपर जाती है इस तरह मेरा मोहम्मद ऊपर गया। आसमान के दरवाजे पे दस्तक हुई, कौन है? मैं जिब्रील हूँ। साथ कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तो उसके बाद दरवाजा खुला, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, पांचवा, छठा, सातवें आसमान पे पहुंचे। जिब्रील ने हाथ बांध लिए, आका आगे नहीं जा सकता, आगे अकेले जाइए। मैं जिब्रील ने अगर कदम उठाया मैं चलकर राख हो जाऊंगा। तो अल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, यारो नबी का हिजरत का सफर भी है, नबी के मेराज का सफर भी है। हिजरत के सफर में भी साथी, मेराज के सफर में भी साथी। हिजरत का सफर तोड़ का सफर, जो हिजरत का सफर था उसका साथी तोड़ का था। जो हिजरत का अलावा मेराज का था वो एक जगह पे मखसूस था, वहां रफीक खड़ा हो गया, कहा आगे नहीं जा सकता। अगर यहाँ पर सिद्दीक अकबर होते, चल तो जाते, मेरे मोहम्मद का साथ न छोड़ते। उसके बाद मेरे दोस्तों आगे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मुलाकात हुई। तो उसके बाद अल्लाह ने आपको जन्नत भी दिखाई, अल्लाह ने आपको जहन्नम के मनाजिर भी दिखाए। जन्नत में अल्लाह ने सहाबा के महल्लात भी दिखाए। क्या दोस्तों बहास हुजूर जब वापस आए तो हजरत उमर से कहा, उमर मैंने तेरा जन्नत में महल देखा। या रसूलल्लाह अंदर तशरीफ ले गए थे, अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया मुझे इतला मिली जो तेरे हिस्से में हूर आने वाली है वो वहां पे वुजू कर रही है। मुझ मोहम्मद को उमर तेरी गैरत याद आ गई, मैं अंदर नहीं गया, पर तेरा महल बंगला मैं देख कर आया, तेरा दर्जा मैं देख के आया। तो उसके बाद मैं एक और बात करने लगा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने वहां पर जब हुजूर अकेले हुए, बड़ी बड़ी किताबों में ये बात मौजूद है, अल्लाह के पाक पैगंबर अकेले होके जा रहे थे। वहां पर ये जो है आपकी कैफियत कुछ और थी। जब कोई इंसान अकेला हो, नई जगह पे जाए, उसकी कैफियत कुछ और होती है। वहीं पर किसी की आवाज आई, वो आवाज किसी और की नहीं थी, ऐसी आवाज थी जैसे सैयदना अबू बकर सिद्दीक की आवाज हो। आप इधर उधर देखने लगे, वो बात करता चला जा रहा है। फिर इसी असना में अल्लाह से पूछा, अल्लाह ये कौन है? अल्लाह ने फरमाया मेरे मोहम्मद, मैंने एक ऐसा फरिश्ता पैदा कर दिया जिसकी आवाज अबू बकर जैसी है। और उसके बाद मैंने कहा मोहम्मद से बातें करे ताकि इसका दिल बहल जाए। तो मेरे दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला को भी पता है कि मोहम्मद बिना सिद्दीक के नहीं रह सकता, इसीलिए अल्लाह ने ऐसा फरिश्ता पैदा कर दिया जो अबू बकर सिद्दीक की याद दिला रहा था। अल्लाह के पाक पैगंबर ने जहन्नम के कुछ मनाजिर देखे, मैं 2-3 मिनट और ले रहा हूँ। अल्लाह के पाक पैगंबर ने जब जहन्नम के मनाजिर देखे तो देखा एक इंसान ऐसा जिसका पेट कमरे से भी बड़ा, उसके पेट के अंदर सांप और बिच्छू हैं। पूछा ये कौन है, इसकी क्या सजा है, ये कौन सी गलती करके आ रहा है? मुसलमानों तवज्जो से सुनना, अल्लाह के नबी को बताया गया ये वो लोग थे जो दुनिया में सूद खाते थे, सूद देते थे, सूदी मामूलात किया करते थे। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया मैं आगे गया, मैंने देखा एक इंसान की जबान कैंची से काटी जा रही है, वो जुड़ जाती है फिर काटी जा रही है। पूछा अल्लाह के नबी ने इनके क्या जुर्म? कहा इनकी जबान से हर वक्त झूठ ही झूठ निकलते थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं आगे गया, मैंने देखा कुछ लोग ऐसे हैं जो उल्टे लटके हुए हैं, जो उल्टे खड़े हुए हैं। मैंने पूछा ये कौन है? कहा ये बदकारी करने वाले लोग थे, मुख्तलिफ किस्म के अजाब देखे। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया फिर मैं वापसी पर आया। जब मैं वापसी आया, जिस जगह से गया वहां मैंने वुजू किया था, वहां वुजू का पानी चल रहा था। मैं जिस बिस्तर से उठ के गया था वो बिस्तर भी गर्म पड़ा हुआ था, और जो दरवाजा खोला था तो कुंडी हिल रही थी, वो भी अभी हिल रही थी। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे मोहम्मद को
फरमाया ये कायनात मेरे कब्ज़े कुदरत में है, जब से आपको उठाया लेकर गया वापस लेके आया, एक सेकंड भी आगे नहीं बढ़ने दिया। इतनी मामूली वक्त में मैं अल्लाह ने तुझे यहाँ से मस्जिद अक्सा पहुँचाया, मस्जिद अक्सा से लेकर फिर मैंने तुम्हें अपने अर्श तक बुलाया, जन्नत दिखाई, जहन्नम के मनाजिर दिखाए, फिर वापस लेके आया, अभी तक वही सेकंड ही खत्म नहीं हुआ था। क्यों कि अल्लाह की शान है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह जो चीज चाहे उस करने पे कादिर है, कोई उसके लिए मुश्किल नहीं है। अल्लाह के पाक पैगंबर आए, अहले मक्का को बताया, सब ने कहा, क्योंकि ये अकल से मावरा बात है कि भाई इतनी थोड़े वक्त में अल्लाह का रसूल जाए, कोई सबब भी नहीं है, असबाब भी नहीं है जो ऊपर तक ले जाए, तो उस वक्त सब ने शोर और गौगा मचा दिया। आज भी कुछ अकल के पुजारी ऐसे हैं जो कहते हैं मेराज का कोई सफर नहीं है, ये कैसे हो सकता है, भला एक आदमी जमीन से आसमानों पे जाए। मैंने कहा हो तो नहीं सकता, लेकिन रब कराए तो कोई रोक भी नहीं सकता। ये मेरे अल्लाह ने मेरे मोहम्मद को इजाज़त अता फरमाया, आपकी अजमत को पूरे आलम में, अल्लाह के नबी की अजमत को अल्लाह ने दिखाना था कि बाकी नबियों का मेराज हुआ तो जमीन पर, मैंने अपने मोहम्मद को मेराज कराया तो अर्शे बरी पर कराया। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने के जो मुखालिफिन थे, उन्होंने पहला इतराज़ ये किया, अच्छा मस्जिद अक्सा में गए थे, बताओ मस्जिद अक्सा की जो ऊपर छत है उस पर टीयर गार्डर जो उस जमाने के थे वो कितने थे। अब मैं यहाँ पे बयान के लिए आता हूँ, मैं यहाँ से जाऊँ, मैंने कहा बस की फौजे में बयान करके आया, मुझे कोई कहे अंदर बैठे थे बाहर, मैं कहूँ बाहर, कहते हैं वहाँ पर लगे हुए पंखे कितने थे, मैं जवाब दूंगा भी मैं तो बयान करने के लिए गया था, तो मैं पंखे करने के लिए तो नहीं गया था। इसी तरह उन्होंने पूछा अच्छा ये बताएं मस्जिद अक्सा के दरवाजे कितने थे। अब मुझे चौथा साल है, मुझे नहीं पता यहाँ कितने दरवाजे हैं। तो उसके बाद अल्लाह के नबी थोड़े से परेशान तो जरूर हुए कि भाई मैं वहाँ ये चीजें गिनने के लिए तो नहीं गया था, लेकिन मैं कहता हूँ मेरे रब की रहमत तो देखिए, फरमाया मेरा मोहम्मद परेशान हो रब गवारा नहीं कर सकता। मैं कहा करता हूँ बच्चा परेशान हो अब्बू तसल्ली देता है, बच्चा परेशान हो अम्मा तसल्ली देती है, जब नबी परेशान हो खुद खुदा तसल्ली देता है। अल्लाह ने फरमाया मेरा मोहम्मद अब परेशान होने की बात नहीं है। आपने फौरन अल्लाह ने तमाम पर्दों को हटा दिया, मस्जिद अक्सा को अल्लाह के नबी के सामने कर दिया, कहा मेरा मोहम्मद देखता भी जा इनको बताता भी जा। अल्लाह के नबी देखते भी गए उनको बताते भी गए। अल्लाह के पाक पैगंबर की ये बातें सुनी, फौरन दौड़े किसके पास, अबू बकर सिद्दीक के पास। अबू बकर सुना है तेरे यार ने, तेरे दोस्त ने आज बहुत बड़ी बात कह दी है। और इसके बाद अबू बकर सिद्दीक ने कहा मैं तो इसकी गवाही देता हूँ कि जो कुछ मेरे यार ने कहा है बिल्कुल सच कहा है, हक कहा है। वो कहने लगा ये बात मानने की है तो सही, बता पहले ये बात मानने की है। अबू बकर ने कहा हमने तो इससे उसकी बड़ी बड़ी मान ली है। उसने कहा मैं अल्लाह का नबी हूँ, हमने कहा हम मानते हैं। उसने कहा मेरे ऊपर जिब्रील आता है, हमने कहा मानते हैं। उसने कहा मुझ पर कुरान उतरता है, हमने कहा मानते हैं। तो हुजूर की तस्दीक अबू बकर करे, अबू बकर की तस्दीक फिर अल्लाह का नबी कर रहा था। अशहदु अन्ना का सिद्दीकुन, अबू बकर तू भी सारे सच्चों में से सच्चा है। पिछला माह जो गुजरा है वो अबू बकर सिद्दीक की वफात का माह गुजरा था। उसके मौके पर मैंने एक जगह पे कहा, मैंने कहा सिद्दीक का लक़ब भी अल्लाह के रसूल ने दिया, अतीक का लक़ब भी अल्लाह के रसूल ने दिया। ये दो लक़ब अबू बकर सिद्दीक के हैं। सिद्दीक का माना सारे सच्चों से सच्चा, अतीक का माना जहन्नम से आज़ाद हुआ इंसान, उसे अतीक कहा जाता है। अबू बकर वो है जो सारे सच्चों में से सच्चा भी है और जहन्नम से आज़ाद किया हुआ इंसान भी है। तो अल्लाह के पाक पैगंबर को अल्लाह ने ये मेराज बतौर इनाम भी कराया और बतौर तसल्ली भी कराई, क्योंकि अबू तालिब की वफ़ात हुई दिल गमगीन, हज़रत खदीजतुल कुबरा की वफ़ात हुई तो दिल और ज़्यादा गमगीन। जब ताइफ के मैदान में गए, वहाँ जाकर जो हुस्न सलूक आपके साथ हुआ वो तो कोई इंसान बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। उस पर अल्लाह ने अपने महबूब को कहा मेरा महबूब अगर तेरी कुर्बानी इतनी है तो आ मैं रब तुझे इनाम इतना अता फरमाऊंगा कि अपना दीदार तुझे नसीब फरमा दूंगा। वहाँ पर अल्लाह ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दो तोहफों से भी नवाजा, एक नमाज वाला दूसरा रोज़े वाला। और इस पर मैं एक बात और कहा करता हूँ, जब वहाँ से 50 नमाजें 6 माह के रोज़े लेकर आए, आगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तजवीज़ दी, मेरी उम्मत पे बहुत कम चीज़ें थी वो नहीं कर सकते थे,
50 नमाजें तो बहुत बड़ी है, आपकी उम्मत अदा नहीं कर सकेगी। 5 मरतबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आपको ऊपर भेजा, फिर आए, ऊपर भेजा, फिर आए, ऊपर भेजा। यहाँ पर सोचने की बात यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम कैसे मेरे नबी को मशवरा दे सकते थे। लेकिन मैं कहा करता हूँ, अगर सोचे हजरत मूसा को अल्लाह बताना चाहता था, या मूसा जब तूने कहा था मुझे अपना दीदार करा, मैंने कहा नहीं कर सकता, तूने इसरार किया, मैंने तजल्ली दी, तजल्ली के को भी तू बर्दाश्त न कर सका, बेहोश हो गया था। आ मेरे मोहम्मद की शान देख, मेरे मोहम्मद की अजमत देख, एक मर्तबा नहीं ये 5वीं मर्तबा मेरे पास आ भी रहा है, जा भी रहा है। और उसके बाद मेरे दोस्तों, ये रजबुल मुरज्जब का महीना बड़ी अजमत वाला महीना है, ये बड़े शान वाला महीना है। और अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया ये 4 हुर्मत वाले महीने हैं। रमज़ान के बाद अगर किसी में अफजल तरीन इबादत का सवाब मिलता है तो वो उन्हीं 4 महीनों में मिलता है, जिसमें ये रजब भी है। इसमें हमें तैयारी करनी चाहिए। किस चीज़ की तैयारी? रमज़ानुल मुबारक की तैयारी करनी चाहिए। अल्लाह के पाक पैगंबर रजब का चांद देखते तो दुआ मांगते थे। मैं उसको अपनी अल्फाज में बता देता हूँ, अगर ना आए अरबी में इसी दुआ मांग लिया करो, ऐ अल्लाह हमारे रजब में, ऐ अल्लाह हमारे शाबान में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान का महीना नसीब फरमा। ये मेरे मोहम्मद रजब के चांद देखने से ये दुआ मांगना शुरू कर देते थे। रमज़ान तक अल्लाह के पाक पैगंबर ये दुआ मांगते थे। रमज़ान की तैयारी अल्लाह के पाक पैगंबर रजब से शुरू करते थे। और एक और मसले की तरफ भी मैं आपकी तवज्जो दिलाना ज़रूरी समझता हूँ, इसके बाद इंशाअल्लाह बात ख़त्म है। वो ये है कि रजबुल मुरज्जब के महीने में एक ख़ास किस्म की बिदअत कह लें, खराफात कह लें, एक रस्म कह लें होती है। और पहले हमारे सुन्नी भाइयों में ये रस्म नहीं थी, ये खराफात नहीं थी, ये देखी देखी दीन का जज्बा तो होता है उनके दिलों में, लेकिन इल्म ना होने की वजह से वो उस खराफात में शामिल हो जाते हैं। वो है रजब के कूंडे जो 22 तारीख को पकाए जाते हैं। आप तारीख उठाकर देख लें, ये हिंदुस्तान से रस्म चली है। और हिंदुस्तान में जब ये रस्म चली थी तो सबसे पहले उनका ऐलान था, अजान फजर की अजान से पहले इसको पका भी लो, इसको खा भी लो, दिन के उजाले में इसको जाहिर ना करना। क्यों? उस वक़्त अहले सुन्नत वल जमात के लोग जो थे वो होशियार थे, उनका ईमान मजबूत था, उनके सामने ये अपनी खराफात नहीं निकाल सकते थे। आज मैं यूँ कह दूँ तो बेजा नहीं, हमारा ईमान कमज़ोर हुआ तो उन्होंने देखा देखी आप हमारे सादा लोगों को भी फंसाना शुरू कर दिया कि वो 22 रजबुल मुरज्जब को एक कहानी सुनाते हैं। एक कहानी में ये कहते हैं एक लकड़हारा था, वो बड़ा परेशान था, बड़ा तंग दस्त था, उसकी बड़ी हाजतें थी और वो इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचा। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने उसे बताया कि तू ऐसा कर, मेरे नाम की नियाज दिया कर, मेरे नाम से नियाज देगा तेरी सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी। उस दिन से 22 रजबुल मुरज्जब को इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की वो कहते हैं वफात है, उस पर उसकी नियाज दे दिया करो तो सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी। ये बताओ मुश्किलात को हल करने वाला कौन है? अल्लाह। जब हम अल्लाह के दरवाजे पे अपना ये माथा टेकेंगे तो हमारी मुश्किलात अल्लाह खुद हल कर देगा। लेकिन ये क्यों करते हैं आज मैं आपको बताने लगा हूँ। 22 रजबुल मुरज्जब को सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का यौम वफात है। और ये वो है जिसने दुनिया राफजियत को नकेल डाली थी, ये वो है जिसने अहले बैत से मोहब्बत भी की है और मोहब्बत का सबूत भी दिया था। लेकिन ये लोग उसकी मुखालफत में आए, कहा जिस दिन ये मरा है हम उस दिन क्या करेंगे, हम उस दिन को ईद के तौर पे मनाएंगे और उसकी खुशी में हम कूंडे पकाएंगे, हलवा पकाएंगे। याद रखो, अगर किसी मुसलमान ने देखे देखे किसी की मुशाबत अख्तियार कर ली, अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया मन तशब्बा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिसकी मुशाबत अख्तियार करता है कल क़यामत वाले दिन उनका हशर उन्हीं के साथ हुआ खड़ा होगा। इसलिए मैं कहता